लेट भी हो सकता है ना। नहीं ओके लेट नहीं होगा। गाइस, तो मेरा वीडियो और ऑडियो स्टार्ट। ऑडियो और वीडियो क्लियर है अभी? हाँ। सही है। डन, ठीक है। सो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। ऑल सेट। So, good evening, guys. Gaurav, Ritik, and Pratyusha. First of all, many congratulations for qualifying three national level examinations, namely GPET, NIPER, and GATE. This session is all about your achievement on GATE examination and creating an awareness among your juniors and next some compliance and next NIPER aspirants so that they can get plan B fixed for their NIPER journey. So, Gaurav, Ritik, and Pratyusha, what was your experience about GATE and how did you come to know about GATE examination? One by one, let's start with Gaurav. मैम, पहले तो मुझे गेट की एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। एक एक बार पिछले साल हुआ था थर्ड ईयर में, तो पता चला था कि जब लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे थे सारे गेट क्वालिफाइड थे। और उसके अगले साल फार्मा माइंड में आकाश भैया और भावना ने ये दो बताए थे। तो वहाँ से फिर पता चला कि गेट क्वालिफाई करके भी हम लोग नेटवर्क फिलअप कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बी के तौर पे उसे फिलअप किया और दो पेपर फिलअप किया था, एक्सेल एंड बीटी, ताकि हमारा क्वालिफिकेशन का चांसेस बढ़ जाए। Okay, Ritik, what about your awareness? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम विजस Was के। और ऐसा था कि जब थर्ड ईयर में था तो पता था कि गेट भी देना होता है, लेकिन दिया नहीं था उस टाइम पे। फिर मालूम चला कि थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हैं, वो भी वैलिड है, अभी उसका स्कोर वैलिड होता है। तो लगा कि ये तो मिस हो गया, फोर्थ ईयर में देंगे। तो फोर्थ ईयर में ऐसा एक सेशन हुआ था पार्लियामेंट्स में, उसमें बताया गया था कि गेट एक्सेल भी देते हैं, बायोटिक भी देते हैं। तो इसलिए मैं और गौरव साथ में प्रिपेयर करता था, तो सोचा कि दोनों चांसेस होना चाहिए कि बीटी भी क्वालिफाई कर जाए। तो उसके बाद गेट दिया और फॉर्चुनेटली दोनों में क्वालिफाई किया रैंक के साथ। तो एक ऑप्शन बना कि हाँ ठीक है, नाइपर भी अब मतलब जीपैट में कुछ दिक्कत होता भी है तो नाइपर के लिए तो क्वालिफाइड है। और उधर से कॉलेज भी मिल रहा था दो तीन, तो वो एक थोड़ा सा अच्छा मतलब बैकअप प्लान हो गया। तो okay, and Pratyusha, what about you? First of all, I didn't know about former students can give GATE, and I joined the Sankar batch. That's when I got to know that we can also attempt the GATE, and so that I applied the GATE in life sciences. So after that, I prepared for GATE and I just gave an attempt. Then just I got qualified, so it acts as a plan B for NIPER. So I didn't take much pressure about GPAT. So we have already qualified for NIPER, so we can easily prepare for NIPER and then got NIPER and GPAT also. Yes, Pratyusha, you spoke about a very important point that you didn't take pressure about GPAT because you were already GATE qualified. So, how important that decision of giving a GATE exam was fruitful to you? Because we know that GPAT date is quite fluctuating from year to year, and later the results and exam pattern is changing. So, giving GATE was a good decision, and you would recommend this to your juniors, or you will just suggest that just give it for practice? Yes, ma'am. Absolutely, I recommend everyone should attempt the GATE because we didn't know when will happen the GPAT. This year there are lot of fluctuations. Like we didn't know about when will the exam will happen, and we, middle of the GPAT preparation we will also have semester. So that will add a lot of pressure to us. So to reduce our pressure, GATE is the very important thing. We have to give attempt, and we have to must we should try to qualify GATE first. Then we don't have that much pressure. Like along with the GPAT and GATE, our semester exams are also important. So that's why I recommend everyone should attend the GATE. Okay. Probably Samip sir must also be having some more questions to ask three of you. I would like to hand over the cordial to Samip sir. Thank you so much, Sakshi ma'am. Okay, so guys, first of all, congratulations on your huge achievements, and you people are definitely inspiring for your juniors as well. So my first question is that both of you, Gaurav and Ritik, told that you gave both life science and biotechnology exam. So
what do you think how important it was to give both the exams? And if you have given just one exam, so if someone is preparing only for one exam, so will it be sufficient, or you recommend to give both the exams as well? Ritik, you can go ahead. पहली बात तो ये है कि यदि एलिजिबल हैं तो देना चाहिए, चांसेस बढ़ती है। जैसे अब जब भी मैं फॉर्म भर रहा था उस टाइम पे ये नहीं था कि क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन यदि फॉर्म भरता ही नहीं तो पक्का क्वालिफाई नहीं करता, ये सोच के फॉर्म भरा था। तो कोई भी हो, यदि एलिजिबल हो गेट बायोटेक के लिए और गेट एक्सेल के लिए, दोनों के लिए, तो दोनों ही भरो और चांसेस तो है कि क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि सिलेबस टैली करती है। जैसे जो 12th में बायोटेक पढ़ के आए, जो अभी हम लोग फार्मेसी में बायोटेक पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन उससे भी आते हैं। दैट इज इनफ टू क्वालिफाई। लाइक 45-40 मार्क्स को लेके आ सकते हैं, उतना ही पढ़ के। मैं बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स 10 आवर्स गेट दिए थे, लेकिन जो मैंने पहले से पढ़ रखा था, यदि एप्टी अच्छा है, आपका एप्टीट्यूड सेक्शन होता है अच्छा है, तो आराम से स्कोर कर सकते हो। उसके लिए अलग से तैयारी करने का जरूरत है यदि आपके पास एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है उतना मजबूत नहीं है, और जो बाकी जो फार्मा का जो सिलेबस उस पर ग्रिप नहीं है। तो सबसे पहला बात यह है कि फार्मा का जो सिलेबस है उस पर ग्रिप होना चाहिए, तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी दोनों। थैंक यू सो मच ऋतिक फॉर शेयरिंग योर व्यूज। गौरव, आपके क्या व्यूज है इसमें, लाइक बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस? क्या ये डिफिकल्ट हुआ आपके लिए दोनों चीजों को मैनेज करना, दोनों एग्जाम देना? देनी कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ। जैसा जीपेट का तैयारी कर रहे थे फार्मा के रिलेटेड, फार्मा रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन था वहाँ पे। जैसे बायोटेक में था, तो बायोटेक फार्मा में भी है, उधर भी है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, ये सब फार्मा में भी है और गेट में भी है। तो अगर इधर अच्छे से पढ़ते हैं गेट के जीपेट के लिए, तो उधर गेट निकालना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और जो 12th में जिसके पास मैथ था उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है थोड़ा मैथ का, और जो भी एप्टीट्यूड पूछता है उसमें, तो वो ईजिली बन जाता है। और बहुत सारा क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से बन जाता है। और उसमें कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो उसमें बहुत तुक्का भी लगा सकते हैं। कुछ भी, जैसा पॉइंट दे रखा है अप टू 3 डिजिट 3 पॉइंट तक करना है, तो कुछ भी लिख कर आ जाना है, मे भी गलती से वो सही हो जाए, तो क्वालिफिकेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो एक जो सिलेबस काफी सारे लोगों ने देखा होगा अगर बायोटेक्नोलॉजी का गेट में, तो उसमें एक पोर्शन आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो काफी सारे जो फार्मा बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो बायोलॉजी फील्ड से होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्या लेवल था एग्जाम में, एंड वो सॉल्व करना टफ था या इट वाज इजीली सॉल्वेबल फॉर यू ऑल? ज़्यादा टफ नहीं था। जो 12th में पढ़ते हैं मैं, सिंपली वही था, बहुत बेसिक लेवल से पूछा होता। और जैसे डिटर्मिनेंट आता है, मैट्रिक्स आता है, तो नाइपर में पूछा था इस बार, तो नाइपर में हेल्पफुल रहेगा अगर वहाँ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते तो। एपी जीपी भी पूछा था, तो वो बायोस्टेट में भी पढ़ना होता है हम लोग को, तो दोनों टैली करता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। To add one point among your discussion, ये हो जाता है कि जब आप लोग गेट का एग्जाम देते हो तो आप लोगों को कंप्यूटर इंटरफेस कैसे हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन सबमिट करने हैं, उनका भी अवेयरनेस आ जाता है और थोड़ी सीरियसनेस आ जाती है, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन देते हो। क्वालिफिकेशन इज वेरी सेकेंडरी। ऑब्वियसली आप तीनों ने नाइपर की वो प्लान बी रखी थी, प्लान ए आप लोगों ने मजबूत ही रखा होगा गेट जीपेट का। तो पर इंटरफेस कैसे होता है, आई स्टिल रिमेम्बर रिटेंशन फैक्टर का क्वेश्चन आ गया था हमारे टाइम पे जब मैंने गेट दिया था। तो इजी क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, टफ क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, वो 3 आवर्स बैठते कैसे हैं एग्जाम में, तो एक प्रॉपर माहौल मिल जाते तो आप लोग, और वो 1-2 मंथ पहले हो जाता है गेट, तो लाइक आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग कितने पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, राइट। तो आई थिंक प्रत्युषा, अगर आप मेरे सहमत हो तो इस पॉइंट पे। Ma'am, I agree with you, ma'am. Because first of all, up to till now, we didn't face that national level exams. If we face the GATE exam, we will get to know how to manage our time and how to face the exam and how to do with the things, how to attempt the questions. We will get to know that in the GATE, ma'am. In GATE, there will be 65 questions, so we will get lot of time and we have to analyze the paper and have to and have to think about what are the questions we should attempt and what are the questions we should left, and this will be helpful in the GPAT and NIPER. In NIPER we will get less time and questions will be more, and these
experience will be much more helpful in the NIPER, ma'am. True. Ayush. ग्रेट प्रत्युषा, ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं भी आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, ठीक है, और जीपैट, नाइपर और फिर गेट भी. तो अभी यूपीएससी का तो कोई फॉर्म नहीं भर रहा है ना, मतलब चालू तो नहीं है ना सिलसिला कि यूपीएससी भी निकाल देंगे अभी. हाँ ऋतिक, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अभी तक तो हो नहीं. सकता है। गौरव का प्लान लग रहा है शायद. हाँ गौरव. देखेंगे फ्यूचर. देखेंगे, मतलब माइंड में सब चालू है. चलो ठीक है, ग्रेट. सो थोड़ा मैं इनसाइट का पूछना चाहूँगा, डीप नॉलेज, कि मुझे कोई चैप्टर्स बता सकते हो ऐसे जो आपने अकाउंट किए हो कि दोनों फार्मा में भी सेम है और गेट में भी सेम है. जैसे क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एनालिसिस में आता है फार्मा में, और केमिस्ट्री मतलब एक्सेल में जो केमिस्ट्री आता है ना उसमें. तो ऐसे कुछ और बता सकते हो क्रोमेटोग्राफी, ऐसे कुछ और सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते बट टॉपिक या चैप्टर्स बताओ ऐसा कोई. तो बता सकते हैं टॉपिक्स कैसा है कि 2-3 टॉपिक्स हैं जो सारे एग्जाम में आते हैं, जैसे हाँ. इम्यूनोलॉजी हो, इम्यूनोलॉजी. यदि फार्मेसी में हो, यदि कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उससे 2 या 3 क्वेश्चन होगा ही होगा. करेक्ट. और एक तो इंजाइम्स का चैप्टर होगा, जो बायोकेमिस्ट्री में इंजाइम्स का जो चैप्टर है वो डेफिनेटली आता है, सभी एग्जाम में आएगा जो भी रेलिवेंट यदि सिलेबस में है. तो एक और चैप्टर जैसे में कि यदि बायोटेक का पेपर दे रहे हो तो आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, Correct. उसमें से क्वेश्चन आते हैं काफी. और ऐसे ऐसे कुछ मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है. जैसे अब रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इंजाइम जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो ये सब कुछ टॉपिक होता है. लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो यदि बायोटेक का कोई पेपर दे रहा है तो उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, पीसीआर प्लॉटिंग, ये एलाइजा हो गया, फिर ट्रांसक्रिप्शन जो बताया था अभी, फिर प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया. ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. और वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि टफ आता है क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट था. यदि वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, यदि वो देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन सीधा बनेगा. करेक्ट. तो ये तो आपने बताया. और मतलब मैंने ऐसा देखा है कि माइक्रोबायोलॉजी का जो सेक्शन होता है एक्सेल में, लाइफ साइंसेज में, वहाँ पे कीमोथेरेपी से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं अपने फार्माकोलॉजी के. तो ये कितने एक्सटेंट तक देखा गया है? आपने कभी नोटिस किया ऐसा आपके टाइम पे? Yes, sir. Microbiology There are तो- questions. यस प्रत्युषा, यू कैन कंटिन्यू. Like which microorganisms produces which antibiotic. There Yes. are 3 questions I think in paper. यस करेक्ट. एंड ऋतिक व्हाट अबाउट यू? तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है एंटीबायोटिक से क्वेश्चन? मैं एक्चुअली ये बोल रहा था कि माइक्रोबायोलॉजी जो मेरा उतना अच्छा है नहीं, तो माइक्रोबायोलॉजी को मतलब कंसिडर नहीं किया था वहाँ पे. ओके. तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे स्विच करना होता है ना. जैसे हाँ. सपोज कि माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो जो 2 पेपर करके गए हैं उसमें से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप किसी और पे चले जाओ जो कि रेलिवेंट लगे कि आपको आता हो उसमें से क्वेश्चन. जैसे मेरा चॉइस था कि बायोकेम करेंगे और जूलॉजी करेंगे. तो जूलॉजी तो कर लिया, बायोकेम थोड़ा टफ लग रहा था तो फूड टेक पे चला गया. हाँ. और कई लोग क्वेश्चन उसमें बन रहे थे, और अल्टीमेटली यही काउंट होता है कितना मार्क्स बन रहा है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इजी था क्या था, मार्क्स तो एक सेम ही काउंट होगा. तो ठीक है, जो तो बन रहा है उसको बनाओ. सही है. मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को ना ये एक बार डाउट होता है, तो अभी तुमने पॉइंट राइज किया है, तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि फॉर्म फिलिंग के टाइम हमको बताना है कि हम बायोकेमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे या फूड टेक्नोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे या फिर जूलॉजी अटेम्प्ट करेंगे. ऐसा होता है या फिर इसके बारे में क्या तुम एडवाइस दोगे? मतलब नहीं, क्लियर कर दो एक बार कि कैसा ये प्रोसेस रहता है. ऐसा डाउट था, हमारा भी डाउट था. हाँ, डाउट था हमारा भी सेम. जैसे जो भी अटेम्प्ट करना हो पहले बताना पड़ेगा क्या? हाँ. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. सारे क्वेश्चन जो सारे सेक्शन है वहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहेगा. एग्जाम पे जो इंटरफेस रहेगा वहाँ पे आपका कंप्लीटली आपका चॉइस है कि कौन सा पेपर आप देना चाहते हो, कौन सा. अब 4 या 5 उसमें पेपर होता है ना, सेक्शन होता है PQRS करके, उसमें से कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करना है. और इनफ टाइम होता है कि 5 को एनालाइज करके हाँ. जो बेस्ट ऑफ 2 है वो आप कर सकते हैं. ठीक है. मतलब सारे क्वेश्चंस पहले एक बार देख लेने के, इवन वी कैन काउंट द मार्क्स कि कौन से सेक्शन में हम कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा करते हैं. और हाँ, फिर एक बार तो हाँ आप मार्क्स काउंट कर सकते हैं. हाँ, इतना इवन टाइम होता है. ठीक है, मैंने भी यही किया था कि जितने सारे जूलॉजी, फूड टेक और माइक्रो सबके मैंने मार्क्स काउंट किए थे
कि मेरे को कितने आ रहे हैं हर सेक्शन में से, और जो फिर मैक्सिमम हो वो 2 को हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक प्रोसेस रहता है। बच्चे काफ़ी यहाँ पे अटकते हैं कि हमको पहले बताना है कि वहाँ पे जाके स्विच करना है, ऐसा। सो बहुत अच्छा है कि आपने ये क्लियर कर दिया, ठीक है। और समीप, एक्चुअली मेरा है ना थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो आप सबका वीडियो है ना वो हो रहा है, ऑफ हो रहा है। हाँ, अभी क्लियर है, ओके। समीप, यू कैन आस्क नाउ। आपके पास कुछ और क्वेश्चन हो, डीप में कुछ नॉलेज आपको पूछना हो तो। ओके सो गाइस, देखो ये चीज में आपको भी कहीं ना कहीं डाउट होगा दैट जो गेट के एग्जाम में 3 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहें तो गौरव, यू कैन गो अहेड। कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, तीनों टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की क्या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई करी थी? सबसे पहले तो मैं जितना भी एमसीक्यू था वो सारा सॉल्व कर लिया था, और वहाँ पे ध्यान से भी देखना होता है कौन कौन सा नेट है, कौन कौन सा एमसीक्यू है, तो और कौन कौन सा 1 मार्क्स है, कौन कौन सा 2 मार्क्स है। तो 2 मार्क्स में अगर आता है तो रिस्क लेना चाहिए, और नहीं आता है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें निगेटिव ज़्यादा होता है। और नेट वाले में ना जैसे था कि अप टू पॉइंट के बाद 3 पॉइंट तक लिखना है, 3 डिजिट तक। तो मैं उसी कुछ जैसा जैसा उसने नंबर डाटा दे रखा था ना, उस हिसाब से उसके आसपास का किया था, तो 1-2 मेरा सही हुआ था। तो उस टाइप से नेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कुछ कुछ जो होता है उसमें न्यूमेरिकल टाइप भी होता है, तो कुछ इंटीजर टाइप में होता है, तो 1 to 9 तो कोई सा भी इंटीजर उसमें रख सकते हैं, तो वो भी सही होने का चांसेस बढ़ा देता है उसमें। ओके, करेक्ट। एक्चुअली मैंने कैमरा ऑफ करने के लिए इसलिए बोला ओके क्योंकि क्वालिटी थोड़ी डाउन जा रही है बाकी सबके इमेजेस की, मतलब वीडियो क्वालिटी। तो हम ऐसा करते हैं, जो बात कर रहे हैं ना उन दोनों को ही हम लोग कैमरा ऑन करने देते हैं, टर्न बाय टर्न कर लेते हैं, ठीक है। या समीप, यू कैन कंटिन्यू। ओके सो गौरव, एक चीज मुझे और पूछनी है आपसे। जो आपने बोला अभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज क्लियर दिस थिंग, क्या वो वहां पर मेंशन्ड होता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है? एंड एमसीक्यू और एमएसक्यू में डिफरेंशिएट करने के लिए वहां पर मेंशन्ड रहेगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इन द एमसीक्यू पैटर्न एंड विच टाइप ऑफ इट इज द एमएसक्यू पैटर्न? हाँ, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पहले तो इंस्ट्रक्ट किया रहता है एमएसक्यू एमसीक्यू के बारे में, और क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा रहता है कि ये एमएसक्यू है, एमसीक्यू है। इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि इस क्वेश्चन से लेकर इस क्वेश्चन तक एमसीक्यू है, इस क्वेश्चन से लेकर इस क्वेश्चन तक एमएसक्यू है। और जितना ये एमएसक्यू है नेट पे ना बिल्कुल निगेटिव मार्क्स नहीं होता, ये छोड़ने का बिल्कुल नहीं है। Thank you so much for adding this, Gaurav. My next question is to Pratyusha. प्रत्युषा, आपने जब पेपर सॉल्व किया था, जब आपने देखा था कि ये वाला क्वेश्चन एमएसक्यू है, सो आपने वहां पर किस तरह से एनालाइज किया था कि इसके मोर देन 1 आंसर्स हो सकते हैं, या फिर इसमें कितने आंसर्स को हमें देखना चाहिए, और क्या उसकी आपको कहीं पर पार्शियल मार्किंग वगैरह मिली थी? First, when I saw a MSQ question, most of the questions will be relevant to our form of it, so that's why we have to analyze the question first. If you are getting the answer, we have to choose the between 3 options, like which will be the most appropriate answer for that question. It will be sometimes it will be 2 options will be correct, sometimes 3, and sometimes it will be 4 options will be the correct. So we have to analyze the question first, then we have to take a time, and we have to carefully read the in multiple choices, and we have to put the answers. तो क्या अगर जैसे 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस करेक्ट है, और अगर किसी ने 2 ही ऑप्शन लगाए हैं, तो उसको मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं? No sir, they won't get marks. So that means there is no partial marking. No sir, there won't be any partial marking. If the 3 answers are correct, you have to put 3 answers, then only you will get the marks. And there will be no negative marking for MSQs and numerical answer type questions. Okay, thank you so much, Pratyusha. I would like to request Sakshi ma'am to please continue. One major question that
साक्षी, साक्षी यू आर नॉट Yeah, ऑडिबल। and people. साक्षी, Hello. एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा, वॉइस ग्लिच हो गया था। Done. Arya. हाँ अभी आ रही है, डन। Huh. So one major extra question that comes in the mind of a exam giver is that कि गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितना एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, और दे थिंक कि उनकी क्वालिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी ही कम है बिकॉज दे हैव नेवर प्रिपेयर्ड ऑफ गेट एग्जाम, एंड ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गई है कि गेट एग्जाम होने वाली है, टेंटेटिव सब गाइडलाइंस आ गई है। तो गौरव, ऋतिक एंड प्रत्युषा, वन बाय वन आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने कैसे उसको प्रिपेयर करा और कितना आप लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला था जस्ट टू गेट अ क्वालिफिकेशन इन द रिजल्ट कार्ड। So Gaurav and then Ritik and Pratyusha, one by one, I will ask you all to answer. हेलो, सबसे पहले ना उसका 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया था, सबसे पहले सॉल्व किया था बिना कोई तैयारी का। तो उसमें अगर आपका 30 मार्क्स से प्लस बन रहा है उस टाइम, तो थोड़ा सा और पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग का 40 मार्क्स ऊपर बन गया था प्रीवियस ईयर में। और थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पर जैसा एफटी आता है, मैथ आता है, तो उसका वीडियो बेसिक देखने का है, क्योंकि वहाँ पे फिर कॉमन सेंस से बन जाता है। और बाकी रहा कि जब जीपेट का तैयारी हम कर रहे हैं तो मेजरली उस कॉन्सेप्ट से बन जाता है, जैसे एस्टिलाइजेशन का क्वेश्चन सेम रहता है, वहाँ पे चैप्टर सेम रहता है, कुछ कुछ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन रहता है, कुछ कुछ फार्माकोलॉजी प्रोसेस से क्वेश्चन रहता है। तो मेनली हमारा फोकस आना चाहिए गेट जीपेट पे ही, ना कि गेट पे। और गेट के थोड़ा सा एफर्ट करने के लिए से बायोटेक पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोकेम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसके यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखकर, या फिर उसका सिलेबस में कुछ अगर एक्स्ट्रा रिएक्शन है या फिर कुछ रिपीट करता है हमेशा क्वेश्चन गेट में प्रीवियस ईयर से, तो उससे कर सकते हैं। तो हमेशा ये क्वालिफिकेशन की ओर आराम से लेकर चला जाएगा। Ritik. फर्स्ट ऑफ ऑल की जो जीपैट का प्रिपरेशन हो रहा है उसको कभी रोकना नहीं है, गेट का अलग से तैयारी करने के लिए जो जीपैट में कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है और तेजी से करना है और फास्ट करना है, ताकि एक सिलेबस कवर हो जाए। तो सिलेबस कवर होने से क्या होता है ना कि जो सोचने का जो मतलब ब्रॉडनेस आता है सोचने, जो क्वेश्चन देख के ना आप बहुत कुछ सोच सकते हो उसके बारे में, कहीं ना कहीं सुना हो, कहीं ना कहीं पढ़ा हो। तो सबसे पहले तो रिकमेंडेशन यही है कि जीपैट का सिलेबस करते रहना। सेकंड में है कि जैसे एप्टी का कुछ वीडियोस होते हैं तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, उसमें से एप्टीट्यूड के लिए कर देना, मतलब वन शॉट में 1-2 वीडियो देख लो 4-5 घंटे का, तो वो वहाँ से एप्टी हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। और बाकी रहा कि स्टार्ट कैसे हुआ था, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम ना देके सीधा क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये ना सोच के पहले 2-3 साल का पेपर, पहले तो जो लास्ट ईयर जो अभी तो 24 में देने वाले हैं तो 23 का पेपर देख लें एक बार कैसा है वो। यदि वहाँ से आपका 40 अराउंड 35-30 भी बन रहा है तो आप सोच के चलो कि आप क्वालिफाई करने वाले हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज अभी आप 30 पे हो तो 40 पे जा सकते हो, 40 पे हो तो 45 जा सकते हो, और जो कि अच्छा रैंक देके जाएगा आप। तो वहाँ से रिकमेंडेशन हो जाएगा कि पहले तो जो जीपैट का पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, छोड़ो मत, और जो एफटी है उसको अलग से पढ़ो। और जो क्वेश्चन है गेट का, जो जैसे एमएसक्यू क्वेश्चन है, तो उसमें ज़्यादा ना सोच के जितना आता है उतना ही करो, ठीक है। गलती होता भी है तो निगेटिव नहीं होने वाला। और बाकी बात रहा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन अभी तुम यदि सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का तो देख के लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो पढ़ रखे हो, जो सिलेबस कवर कर रखे हो, उसमें से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अपने आप से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ कर सकते हैं। ऋतिक, मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि तुमने जीपैट का बताया, तो मुझे फार्माकोग्नोसी का कुछ रोल बता सकते हो क्या गेट में? थोड़ा ऑड लगेगा जो जूनियर्स देख रहे हैं, कहीं एनकाउंटर किया था फार्माकोग्नोसी को पूरे पेपर में? मैंने तो नहीं किया, लेकिन इन केस यदि बायोकेमिस्ट्री टफ आ गया, हाँ। हम इस बार आईएससी ले रहा है तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा होने वाला है, ये तो हाँ। सोच के चलो इस बार। तो इन केस बायोकेमिस्ट्री में टफ आ गया, जूलॉजी टफ आ गया, तो आप किसी और पे जाने के बजाय यदि बोटनी पे जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन पहले मिल सकता है बोटनी में। यस। बाकी तो ऐसा कोई रोल नहीं है, फार्माकोग्नोसी इसमें आ सकता है। ओके, मतलब सर्वाइवल टाइप के लिए अगर कोई फार्माकोग्नोसी कर रहा है तो वो एक लास्ट केस सिनारियो रख सकता है हाँ। कि मिल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
हाँ, और एक्चुअली मेरा भी उससे उतना अच्छा नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा गेट पे। हम्म और एक और सजेशन रहेगा मेरी तरफ से हम्म कि आप अभी नाइपर देने वाले हो, अभी IIT पीयू का अलग से एग्जाम होता है वो देने वाले हो, हाँ। गेट भी देने वाले हो, तो एक हैबिट बनाओ कि जो एप्टीट्यूड है उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे स्पीड टाइम क्वेश्चन हो गया, फिर जो एज वाला क्वेश्चन हो गया, वो सब अभी एक ना मतलब डेली 10 मिनट जब भी मन किया ना तो 10-20 मिनट देख लिया करो, एक हैबिट बनाओ। बिलीफ में आके बहुत काम आने वाला है। जैसे मेरा FP अच्छा था स्टार्टिंग से, तो बहुत हेल्प मिला। यदि फार्मा पर्सन कहीं लैग भी करता है तो वो आपको उभार के लेके आएगा, पक्का आपका रैंक देके जाएगा वो FP से। तो 2-3 एग्जाम जो आपको टारगेट करना है उसमें FP आने वाला है, तो FP एक बार हैबिट में डालो कि देखना। ग्रेट ग्रेट। प्रत्युषा, आपकी स्ट्रेटेजी। In GATE and GPAT, most of the subjects are same, and so we don't need to study extra things or like that. We have to study like some for aptitude and some for organic chemistry, or if you want to attempt some botany or zoology, you have to study extra. Then otherwise, no need to study extra. If you study biochemistry and microbiology, it will be helpful for our GPAT and NIPAT preparation also. So I suggest you everyone to solve like 2010 to 2013 question GATE question papers. Take that question paper every day and try to solve each and every question in that paper. And in GATE, most of the questions we repeat in every year. So numericals will repeat more than MSQs and NCQs. So try to solve every numerical in previous papers. That will be more helpful while you are attempting the exam. Thank you guys, Gaurav, Ritik and Pratyusha, and to all the audience listening this video. There is a GPET WhatsApp group link in which you can find your seniors and mentors. They will be guiding you for every other doubt, and can easily assess to the upcoming sessions for your GCATE exam. So just go join that WhatsApp group, and you can interact with Gaurav, Ritik, Pratyusha, Samip sir, and Ayush sir, including me, and just for the qualification purpose and plan B to just cement out your plan B. We are here, and that's all from our side. Looking forward for more sessions with this intelligent brains out there. Thank you very much. ओके, लास्टली सब लोग एक बार कैमरा ऑन कर दो सो वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर अवर इंस्टाग्राम स्टोरीज. ओके, ओके, आई होप सबने कर लिया होगा. आई एम वेटिंग फॉर द नेटवर्क. आप सबका वीडियो शो होने में टाइम लगेगा. Okay, sir, I took the screenshot. I can share it. Okay, Okay. so for the audience on our YouTube channel, please like this video, subscribe to the channel, and if you have any other doubt regarding any question regarding GATE, the comment box is always open for you. Okay, इसके साथ do not forget to share this video with all the GATE aspirant जो भी GATE लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी का पेपर देना चाहते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ गेट विल बी ओपन वेरी सून. उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Okay, great. Again, thank you, Ritik, Gaurav, and Pratyusha. Now we will wrap up the session. Okay, chalo. थैंक यू सर। Thank you. Bye Thank you. and good ठीक है सर।